سے کہ بہت ساری ہماری بہنوں نے بیٹیوں نے اس بات کا ذکر کیا اور انہوں نے چاہا کہ اس ٹاپک کو ذرا تفصیل سے کریں. تھوڑی سی بات ہم نے کچھ اپنے پچھلے ایپیسوڈز میں کی تھی کہ عورت کے ساتھ کیسا رویہ ہونا چاہیے اور کیسا رویہ ہوتا ہے. زندگی سے پریشان ہوتی ہیں یا اس معاملے کا حل نہیں ان کو ملتا اور اس معاملے کو حل کرنے کے لیے وہ نہایت یا ہو سکتا ہے الٹے سیدھے بھی قدم اٹھاتی ہوں. ہر جگہ علاقوں میں وہاں پر سب کو یہی تعلیم دیتی ہوں کہ ہمیں اپنی ازدواجی زندگی کو کیسے سنوارنا ہے، کیسے بنانا ہے. بہت اچھی بات ہے. لیڈیز کی کو آگے نکلتے دیکھ نہیں سکتی اور اس میں ہم لوگ بہت کچھ سیکھتے ہیں کہ ہمیں ایک دوسرے سے ایکسپیرینس ملتا ہے اور ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کا موقع ملتا ہے. انکریجمنٹ دینے کی بجائے ڈسکریج کرتے ہیں، ہے نا؟ ڈسکریج بھی کرتی ہیں. بالکل ڈسکریج تو ہم بہت زیادہ ہوتے ہیں اور کرتے ہیں. مسیح میں میرے عزیزو، خدا ان کا شکر ہو کہ آج اس نے پھر ہمیں موقع دیا ہے کہ ہم اپنی روزمرہ کی زندگی پر غور کرتے ہوئے اس پروگرام کو کریں جس کا نام ہے بول کے لب آزاد ہے تیرے. میں اور ہنا آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہیں اور سلام عرض کرتے ہیں. اور آج کا جو ٹاپک ہے اس کے بارے میں میں ضرور آپ کو بتانا چاہوں گی. وہ بہت اہمیت کا حامل ہے اس لحاظ سے کہ بہت ساری ہماری بہنوں نے بیٹیوں نے اس بات کا ذکر کیا اور انہوں نے چاہا کہ اس ٹاپک کو ذرا تفصیل سے کریں. تھوڑی سی بات ہم نے کچھ اپنے پچھلے ایپیسوڈز میں کی تھی کہ عورت کے ساتھ کیسا رویہ ہونا چاہیے اور کیسا رویہ ہوتا ہے. یہ بہت ہی اہم بات ہے کیونکہ سب سے پہلے اس بات پر غور کرنا چاہیے. کہا جاتا ہے کہ عورت ہی جو ہے وہ عورت کی سب سے بڑی دشمن ہوتی ہے اور دوست بھی وہی ہوتی ہے، سہیلی بھی وہی ہوتی ہے. تو ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہماری زندگیوں میں ہمارے جو رشتے ہیں، ہماری فیملی میں، ہمارے خاندان میں، ان کا رویہ جیسے کہ چاچی کا بھتیجی کے ساتھ، پھپھو کا اپنی بھتیجے کے ساتھ، ماں کا بیٹی کے ساتھ، ساس کا بہو کے ساتھ، بہن کا بہن کے ساتھ، سارے جو ہمارے رشتے ہیں. تو ہم اپنے جو بھائی ہیں یا مرد حضرات جتنے بھی ہماری لائف میں ہوتے ہیں ان کو ایک سائڈ پہ رکھتے ہوئے ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں آج کہ ہمارا ایک دوسرے کے ساتھ رویہ کیسا ہوتا ہے اور کیسا ہونا چاہیے، اور اگر وہ ٹھیک نہیں ہے تو ہم اسے کیسے بہتر کر سکتے ہیں اور اس کی کیا ضرورت ہے. تو یہ سارے سوالات ہیں. آج ہمارے ساتھ کال پہ بھی کچھ لوگ ہوں گے، دیکھتے ہیں کہ ان کی کیا رائے ہے اور ہنا بھی آپ سے محو گفتگو ہوں گی اور اس طرح سے ہم اس سلسلے کو لے کے چلیں گے. سب سے پہلے ہنا ہمارے ساتھ ایک کالر ہے، میرے خیال میں ان کو لیتے ہیں. ان کا نام ہے ڈورین فارڈی اور ان کا تعلق اسلام آباد سے ہے اور اسلام آباد میں یہ منسٹر آف انٹر پروونشل کوآرڈینیشن میں بحیثیت پرائیویٹ سیکرٹری ٹو منسٹر آفس کام کرتی ہیں. اچھا، لیکن کال پہ میرے خیال میں پہلی کال پہ وہ ہمارے ساتھ شیرین آصف ہے. کنفرم کرتے ہیں. ہیلو، آپ شیرین بات کر رہی ہیں؟ جی ہاں جی. تو ہم آپ کو پروگرام بول کے لب آزاد ہیں تیرے میں خوش آمدید کہتے ہیں. شیرین، آپ تھوڑا سا اپنی خدمات کے بارے میں پہلے بتائیں اور پھر اس کے بعد ہم آپ سے سوالات کریں گے. ہاں، میری خدمات جیسا کہ آپ تھوڑا بہت مجھے آلریڈی جانتے بھی ہیں. نہیں، میں بہت اچھی طرح سے جانتی ہوں، لیکن میں چاہتی ہوں کہ سب جانے، آپ کو جو سن رہے ہیں، جو دیکھ رہے ہیں پروگرام، تو ان کو بھی بتانا چاہیے. ایکچولی میری خدمت جو ہے ایکچولی بہنوں میں ہے، خاص طور پر ان بہنوں کے لیے جو اپنے ازدواجی زندگی سے پریشان ہوتی ہیں یا اس معاملے کا حل نہیں ان کو ملتا اور اس معاملے کو حل کرنے کے لیے وہ نہایت یا ہو سکتا ہے الٹے سیدھے بھی قدم اٹھاتی ہوں یا دل برداشتہ ہو کر ادھر ادھر اپنے سکون اور تسلی کو ڈھونڈتی ہوں. میں اس کے اوپر ہمیشہ اکارڈنگ ٹو بائبل کی آیات لے کر بائبل سے ان عورتوں کو سکھاتی ہوں کہ ہمیں اپنی ازدواجی زندگی کو کیسے چلانا ہے اور کس طرح چلنا ہے. اسی میں ہماری تسلی اور اطمینان ہے. اور میری منسٹری بھی عورتوں پر ہی ہے اور ہماری ہر روزانہ کی میٹنگ ہوتی ہے، جیسا کہ
कराची में जिस तरह खिदमत होती है उसी तरीके से मैं उन औरतों को लेके अपने साथ चलती हूँ। मेरे बहुत सारे ग्रुप्स हैं हर जगह इलाकों में, वहाँ पर सबको यही तालीम देती हूँ कि हमें अपनी इज़्दवाजी ज़िंदगी को कैसे संवारना है, कैसे बनाना है। बहुत अच्छी बात है। शीरिन बाजी, मैं आपको जितना जानती हूँ, आपने ये खिदमत किसी के दबाव में नहीं बल्कि खुदावंद की मर्जी से चूज़ की और इसको बड़ी मुस्तकिल मिजाजी से आप कर रही हैं। जी जी जी, जाहिर है। हाँ, तो इसके लिए हम आपके निहायत शुक्रगुजार हैं सारी बहनें कि आप इस खिदमत को करने में हमेशा कोशा रही हैं और बड़ी खूबसूरती से इस जिम्मेदारी को निभा रही हैं। आज आपके तो बहुत सारे तजुर्बात रहे होंगे क्योंकि आप बहुत सारी ख़वातीन से मिलती हैं, तो इसलिए हमने सोचा कि आपसे बात की जाए, क्योंकि आज हमने टॉपिक रखा है कि औरत के साथ कैसा रवैया होना चाहिए या कैसा रवैया होता है, हमें एक दूसरे को कितना सपोर्ट करने की ज़रूरत है। मैं हरगिज़ भी ये कहने का मतलब नहीं है कि एक औरत अगर गलत है तो आप क्योंकि उसके दोस्त हैं या आप उसकी बहन है या आप उसके रिलेटिव है तो आप उसको सपोर्ट करते रहें, मेरा हरगिज़ भी मतलब ये नहीं है। तो फिर भी हमें एक दूसरे की सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है जो पॉजिटिव थिंग्स हैं उनमें। तो आप क्या कहोगे इस बारे में? जैसा कि सिस्टर आपने कहा कि औरत ही औरत को सपोर्ट कर सकती है, वाकई ये बात हकीकत है, क्योंकि औरत जिस तजर्बात से मैं गुजरी हूँ या जिस तजर्बात से आप गुजर रही हैं वो काफ़ी हमारे मैच होते हैं। तो मैं ये समझती हूँ कि अगर हम जिन तजर्बात से गुजर रही होती हैं तो हमें दूसरों को संभालने की ज़रूरत है। अगर हम संभल चुकी हैं, अगर हम लोग उस चीज़ को सह लिया, बर्दाश्त कर लिया, जिस तरह फॉर एग्जांपल जैसे हमने शौहर के साथ किस तरह अपना वक्त गुजारा। अगर हम कोई सुनने में आता है कि अक्सर मैं बहनों से सुनती हूँ उनका शौहर बड़ा जालिम था, उनके हस्बैंड, उनकी सास ने ये जुल्म किया, वो हुआ। अब उसने किस तरीके से उसको फेस किया, ये औरतों का काम है कि हम अपनी जो दूसरी औरतें हैं जो कमज़ोर हैं, क्योंकि बाइबल मुकद्दस भी यही कहती है कि हमें कमज़ोरों को संभालना है। तो जो कमज़ोर हैं इस वक्त, जो इस मरहले से गुजर रही हैं, जैसे नई नई बच्चियों की शादी हुई है, वो अभी सास के मतलब ताल्लुकात से गुजर रही हैं, हस्बैंड की जो जितनी भी बातें हैं उसको देख रही है, उसको कभी कभी वो न्यू होती है तो वो थोड़ा सा घबरा जाती है उस हालात को देख के, क्योंकि आप जानते हैं कि जैसे एशिया में तो तकरीबन एशिया ममालिक में इस तरह के सारे मसले मसाइल पाए जाते हैं। तो उसको देखने के लिए जो औरत इस मसले से निकल चुकी है, जिसने ये सहना सीख लिया है, जिसने उसको फेस करना सीख लिया, तो मैं समझती हूँ कि उस औरत का काम है कि अपने से जो जूनियर है, जो अपने से अभी जो इस तजर्बे से गुजर रही है, उसको समझाने की ज़रूरत है। कुछ औरतें होती हैं जो उनको नेगेटिव तौर पे समझाती है कि जी हाँ, एक मिनट शीरिन, एक मिनट सिस्टर जी, मैं आपसे इस बात को जरा क्लियर करना चाहती हूँ। आपका जो सेंटेंस था उसमें ये था कि जिसने ये सीख लिया है, सहना सीख लिया है, मतलब कि हमें दूसरों को भी सहना सिखाना है, हमने सहना है बस। हाँ बिल्कुल। अच्छा, मतलब कि आप ये समझते हो कि औरत का काम है सिर्फ सहना? जी हाँ, मतलब जाहिर है एशिया ममालिक में तकरीबन इस तरह के हालात पाए जाते हैं। इस तरह होता है कि सास जो है वो अपनी बेटी से बढ़कर अपनी बहू को थोड़ा कमतर जानेगी, या जिस तरह अक्सर ये जो मतलब जिन मैं औरतों से मिलती हूँ तो वहाँ पर ये सारी बातें मुझे सुनने में मिलती हैं। तो मेरा जहाँ तक बात है, मैं ये चाहती हूँ कि जो दूसरी औरतें हैं जो इस तजर्बे से गुजर चुकी हैं और जिन्होंने इस मसले में कायम रहकर अपने आप को मजबूत रखा है, साबित कदम रही हैं, उनका काम है कि उन्हें भी इस तरह समझाया जाए, उनको टीच किया जाए। तो मैं समझती हूँ कि काफ़ी हेल्प हो सकती है, क्योंकि एक दूसरे के तजर्बा से हम सीख सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सीखते हैं। अब हमारा सवाल ये है कि अगर सास के रवैये पे बात करते हैं, सिर्फ इस रिश्ते को ले लेते हैं हम कि सास और बहू का रिश्ता है। अब अगर सास का कभी कभी रवैया अच्छा होता है बहू के साथ तो बहू का नहीं अच्छा होता, या बहू का अच्छा होता है तो सास का अच्छा नहीं होता। उसके अंदर की जो वजह है ना कि हम एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं करते, और औरतें हैं, हमें पता है कि क्या दुख मैंने सहे थे, क्या दुख ये सहेगी, क्या इसकी ज़िंदगी में आएगा, क्योंकि मेरा भी शौहर था, मेरा भी घर था, मेरा भी ससुराल था।
अब वही मेरी बहू जो आई है, उसका भी शौहर है, उसका भी ससुराल है, उसके भी प्रॉब्लम्स है, तो बजाय इसके कि हम उसका साथ दें, उसको सपोर्ट करें कि नहीं मैं अपने बेटे के खिलाफ जाके भी उसको सपोर्ट करूंगी क्योंकि वो मेरी बेटी है, उसने आगे जाके मुझे संभालना है, ऐसा नहीं होता, बल्कि हम उलट उसका करते हैं। हमें ये जेलसी फील होने लग जाती है, मेरा बेटा छीन लिया इसने। तो हम इस रवैये को चाहते हैं कि किसी तौर पर खुदा उनके कलाम के ज़रिए से बेहतर बनाया जाए और बेहतर किया जाए। जैसे कि हम नोमी और रूथ की सास का रवैया देखते हैं बाइबल में कि वो कैसा था, उसने कितना प्यार बहुओं ने कितना सास से किया और सास ने कितना बहुओं से किया। लेकिन हम लोग इसके उलट चल रहे हैं, अपने माशरे में रहते हुए उसी का रंग ढंग हम अपने ऊपर उतारते हैं और उसी तरह से चलते हैं, कलाम को भूल जाते हैं। इस बारे में क्या बोलोगे आप, कैसे बेहतर हो सकता है ये? देखिए सिस्टर, देखिए जितनी भी अगर बहनें हैं, अगर उन्हें बारीकी से अगर वो बाइबल को पढ़ें तो इसमें आप देखें कि जितने तजर्बात हैं नबियों के, पैगंबरों के, और जितने भी अगर हम नोमी और रूथ की भी जब स्टोरी पढ़ते हैं वो उनके तजर्बात सारे सामने लिख दिए गए हैं। अगर इस तजर्बात से ये लोग वाकिफ हो जाएं, इसके रिजल्ट से वाकिफ हो जाएं, तो मैं नहीं समझती कि ये सारे ही वो काम करें। अगर वो ये कहती हैं कि जी तो अगर अपने शौहर को कहती हैं तो तुम्हारी अम्मी ने मेरे साथ ऐसा किया, तुम्हारी अम्मी नहीं ठीक किया, या जो कुछ भी है, तो अब उसका रिजल्ट आपके सामने होगा। आप देखें कि शौहर जो अक्सर हस्बैंड होते हैं वो बज़ाहिर तो कुछ नहीं कहेंगे, बज़ाहिर तो वो अपनी बीवी की साइड लेंगे क्योंकि उस ज़ाहिर है वो जानते हैं कि मैं शादी की ऐसे मुझे रहना है, लेकिन अंदर से एक खलीस पैदा होना शुरू हो जाएगी शौहर के दिल में। बिल्कुल। तो बेहतर तरीका यही है कि हिकमत यही कहती है कि मेरा तजर्बा जो है, मैं ये कहती हूँ कि हमें सास की बुराई जो है अपने शौहर के सामने करने की जरूरत ही नहीं है, और अगर हम करती हैं तो वो बात तो कुछ नहीं होगी, लेकिन अंदर से दूरियां पैदा होने, और यही वजह है जिसकी वजह से दो मियाँ बीवी में दूरी पैदा होना शुरू हो जाती है। और फिर ये देखें कि अगर शौहर ने थोड़ा सा अपनी माँ की साइड ले ली तो बीवी नाराज, अभी जैसा आपने कहा ना कि कभी शौहर कभी सास बहू से नाराज हो, असल में बेचारा शौहर जो है वो फंस जाता है, सास बहू से, बहू सास से। हाँ, और औरतों ने स्यापा डाला होता है। तो बेहतर तरीका यही है। बिल्कुल। हाँ, बेहतर तरीका मैं समझती हूँ, अगर औरत ने हस्बैंड की तवज्जो चाहती है, ठीक है, और अगर उसकी मोहब्बत चाहती है तो उसे उस माँ से भी प्यार करना ही होगा। और अगर मैं समझती हूँ कि अगर माँ चाहती है कि मेरा बेटा खुश रहे तो माँ का भी काम है कि अपनी बहू से ऐसे ही प्यार करे। क्या बात है। एक जगह मैं ये बहुत अच्छा, बस यही वाला रिजल्ट चाहिए था हमें, यही वाला रिजल्ट चाहिए था, यही बात सुनना चाह रहे थे हम लोग। बहुत अच्छी बात है। हाँ जी, बताइए जी। आप कोई तजर्बा बता रहे थे अपना? कंटिन्यू। हाँ जी प्लीज। हाँ कंटिन्यू। मैं आपको ये बताना चाह रही थी, एक जगह मैं बैठी हुई थी किसी एक प्रोग्राम में, तो वहां पर एक लेडी ने कहा कि कलाम मुकद्दस में लिखा है कि अपना अगर पैदाइश में पढ़े तो वहां लिखा है कि शौहर जो है वो अपने माँ बाप को छोड़ेगा और अपनी बीवी से मिला रहेगा। मैंने कहा ये जरूर लिखा है कि छोड़ेगा, लेकिन छोड़ने का मकसद ये हरगिज नहीं है कि वो उनसे बात ना करे, उनको उनके हकायक ना दे या उनको बिल्कुल भी। तो मैंने कहा कलाम मुकद्दस में ये भी तो लिखा है कि तू अपने माँ बाप की इज्जत कर, अपने माँ बाप से प्यार कर ताकि तेरा भला हो और तेरी उम्र दराज हो। तो मैंने कहा आप नहीं चाहती, आप बीवियां नहीं चाहती कि आपके शौहरों की उम्रें दराज हो जाए, आप जरूरी उनको इस बात पर उकसाने पे लगी हुई हैं कि आप अपनी माँ से बदतमीजी करें या आप अपने बाप से बदतमीजी करें तो आपकी उनकी जिंदगी के दिन कम। मैंने इस तरह हमें अगर सास और बहू अगर ये चीजें सोच लें कि मुझे अपने बेटे को खुश रखना है तो मुझे अपनी बहू के साथ खुश रहने की जरूरत है, और अगर बीवी भी सोच ले कि मुझे अपने शौहर का भला चाहना है तो मुझे उसमें रुकावट बनने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बीवी का प्यार बीवी से है, माँ का प्यार एक अलग चीज है। वो हर एक का अपना अपना एक रुतबा है, उस रुतबे में मैं समझती हूँ कोई किसी की इन्वॉल्वमेंट नहीं हो सकती। बीवी नहीं कह सकती कि माँ मेरी जगह खड़ी हो रही है या माँ कहे कि बीवी मेरी जगह खड़ी हो रही है, ऐसा नहीं होता, क्योंकि उनकी जगह ही दोनों की बहुत अलग है, बहुत अलग है। बिल्कुल बिल्कुल। और एक बात और भी, बहुत करीबी रिश्ता होता है बहनों का,
तो कभी कभी जो है वो हम जी। एक दूसरे के लिए ढाल बनने की बजाय हम एक दूसरे को बहुत ही डिस्करेज कर रहे होते हैं इस मामले में कि नहीं मेरे कपड़े ज़्यादा अच्छे होने चाहिए, मुझे ज़्यादा खूबसूरत नज़र आना चाहिए, मुझे वो, तो ये भी बड़ा गलत रवैया हमारा बहनों में। और इसको देख के फिर ये होता है कि दूसरे लोग जो है इसका एडवांटेज लेते हैं और फिर उनमें फूट जो है वो बढ़ती जाती है और रिश्ते हमारे ख़राब हो जाते हैं। तो ये भी बड़ा नाजुक जी। मसला है। तो बहरहाल बहुत अच्छा जी। लगा आपसे बात करके, फिर किसी दिन आपसे तफसीली बात करेंगे और बहुत सारे तजुर्बात आपसे सुनेंगे। बहुत सारी दुआएं हैं आपके लिए, बहुत सारा प्यार। थैंक यू। थैंक यू। ओके जी। इन्होंने अभी जो बात की कि वो आयत है कि मर्द अपनी माँ बाप को छोड़ेगा और बीवी से मिला रहेगा, औरत भी, ये भी लिखा है, औरत अपने माँ बाप को छोड़ेगी और शौहर से मिली रहेगी, शौहर अपने माँ बाप को छोड़ेगा और बीवी से मिला रहेगा। लेकिन ये कॉन्टेक्स्ट है, एक कॉन्टेक्स्ट है ये इसमें ये सारी बातें नहीं आ जाती, बिकॉज अगर आप कंप्लीट पढ़े ना उसमें ये तो नहीं लिखा कि वो बेटा जो है, वो शौहर जो है वो हर रोज अपने माँ की बेइज्जती करेगा। हाँ नहीं, ये बात भी नहीं। उसके अलावा ये भी कि भाई वहाँ पर उनसे कता ताल्लुक होने का तो कोई जिक्र नहीं है ना, वो दोनों एक तन होंगे, यानी कि उन्होंने एक गल होनी चाहिए। बिल्कुल। तो क्या ऐसा हो पाता है? अगर आप शौहर को कहते हो जी तेरी माँ है या तेरी बहन है, तो क्या वो एक तन बात हो गए तो फिर दोनों की माँ हो गई ना। तो फिर जो वो, शौहर की हाँ, माँ है वो बिल्कुल। बीवी की माँ हो गई और जो बीवी की माँ है वो शौहर की माँ हो गई। लेकिन बस क्या करें, बहुत अलमिया है कि हम समझ नहीं पाते इस बात को। तो वो अलग अलग तो नहीं ना, तो वही बात है कि हम कुछ चीज़ जो हमारे अपने मतलब में आ रही होती है हम उसका जिक्र तो कर लेते हैं, मगर हम ये नहीं देखते उससे आगे या उससे पीछे क्या बात की गई। सही बात है। तो मेरा ख्याल ब्रेक का टाइम हो गया, एक ब्रेक लेते हैं और फिर दूसरी कॉलर लेते हैं। तो नाज़रीन कहीं मत जाइएगा, यही रहिएगा, आते हैं हम ब्रेक के बाद। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। और जैसा कि आप जानते हैं आज हमारा टॉपिक है औरत के साथ रवैया कैसा होता है, कैसा होना चाहिए और इसकी क्या ज़रूरत है। इसी हवाले से हमारे साथ एक और कॉलर हैं जिनका जिक्र हिना पहले से कर चुकी लेकिन मैं चाहूँगी दोबारा जिक्र कर दे ज़रा। जी जी, डॉरिन है इस्लामाबाद से जी। और डॉरिन जो है वो मिनिस्टर ऑफ इंटरनेशनल प्रोविंशियल कोऑर्डिनेशन में एज अ प्राइवेट सेक्रेटरी टू मिनिस्टर ऑफिस जो है वो अपनी खिदमात सर अंजाम दे रही हैं। और एक बेटी है इनकी, और वो इस हवाले से पर्सनल एक्सपीरियंस, प्रोफेशनल एक्सपीरियंस रखती हैं कि ख़वातीन में जो वक्त है गुजरता किस तरह के उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ता है। हाँ जी, क्योंकि पहले आप लोगों ने नाज़रीन देखा कि हमने बात की है फैमिली के हवाले से कि हमारी फैमिलीज़ में हमारा औरतों का दूसरी औरतों के साथ कैसा रवैया होता है। अब हम देखेंगे कि प्रोफेशनली हमारा रवैया एक दूसरे के साथ कैसा होता है। तो देखते हैं अगर वो कॉल पर आ गई हैं तो। हेलो 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 अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी डॉरिन बात कर रही है? जी डॉरिन बात कर रही हूँ। हाँ जी, हम डॉरिन, आपको हाँ। प्रोग्राम बोल के लब आज़ाद हैं तेरे में खुश आमदीद कहते हैं। डॉरिन कैसी हैं आप? थैंक यू, बिल्कुल ठीक ठाक, शुक्र खुदा उनका। अच्छा, आप मुझे लगता है आप हमें सुनाएं। ठीक से सुन रही हैं, लेकिन हमारे पास आपकी आवाज़ थोड़ी सी बहुत कम आ कम रही आ है। रही है। हाँ, नहीं मुझे आपकी आवाज आ रही है। ओके जी, तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कि औरत के साथ कैसा रवैया होता है, कैसा होना चाहिए और इसकी क्या ज़रूरत है। तो हम इसको आपके साथ मिलकर सीखना चाहते हैं, प्रोफेशनली देखना चाहते हैं कि हमारा एक दूसरे के साथ कैसा रवैया होता है। आपके क्या तजुर्बा हैं इस मामले में? तजुर्बा देखें, मैं बहुत छोटी सी उम्र से सर्विस में आई हूँ और मैंने बहुत एक्सपीरियंस किया। कम से कम 30 साल हो गए मुझे सर्विस करते हुए, और यहाँ पे अप्स एंड डाउन्स भी आए और उतार चढ़ाव तो आते रहते हैं। लेडीज की को आगे निकलते देख नहीं सकती, और इसमें हम लोग बहुत कुछ सीखते हैं कि हमें एक दूसरे से एक्सपीरियंस मिलता है और एक दूसरे से आगे बढ़ने का मौका मिलता है।
जेलसी, एक्सपीरियंस जेलसी भी बहुत ज्यादा होती है कि एक लेडी काम कर रही है, अगर 16 पे या 17 पे है, तो हम उससे आगे किस तरह निकलें। इसमें हम अपनी एजुकेशन पे भी ध्यान देते हैं, हम अपने आप को आगे बढ़ाने के मौके मिल जाते हैं, लेकिन प्रोफेशनल जेलसी जो है हमारी लेडीज में बहुत ज्यादा पाई जाती है। तो अगर हम इसे कंपटीशन कहें तो क्या ये ज्यादा बेहतर लफ्ज नहीं होगा? नहीं, कंपटीशन बिल्कुल, होना ये चाहिए मेरे competition- ख्याल में। कंपटीशन बुरी बात नहीं है, लेकिन जेलसी नहीं होनी चाहिए, है ना? या जेलसी तो बहुत ज्यादा है, लेग पुलिंग बहुत ज्यादा है कि आप आगे बढ़ गए हैं, और उसी जेलसी में दूसरी लेडीज भी तरक्की करने की कोशिश करती हैं कि हम भी आगे बढ़े, आगे अपनी एजुकेशन को फर्दर करें, या औलाद की जेलसी हो जाती है कि ये इसके बच्चे आगे बढ़ रहे हैं तो हमारे बच्चे क्यों नहीं बढ़ रहे। बहुत से फर्क आते हैं, और हमें जब सुबह निकलना होता है लेडीज के लिए जॉब करना बहुत मुश्किल है, और जब हम सड़कों पे आते हैं जाते हैं तो रास्ते की हर्डल्स और फिर ऑफिस की परेशानियां, बहुत सी टेंशन्स का हमें सामना करना पड़ता है। मतलब आपका कहने का ये है कि और बहुत सारी टेंशन्स जो हैं वो ऑलरेडी होती है, और जबकि हम इसमें एक Already टेंशन और इजाफा कर इजाफा देते हैं कर कि हम देते हैं। औरतें ही औरतों को इनकरेजमेंट देने की दुश्मन है। बजाय डिस्करेज करते हैं, है ना? डिस्करेज भी करती हैं, बिल्कुल बिल्कुल डिस्करेज तो हम बहुत ज्यादा होते हैं और करते हैं, क्योंकि लेडीज के साथ काम, अगर एक ऑफिसर के साथ स्टाफ छोटा है तो वहाँ पे थोड़ी सी मुश्किलात होती हैं कि जो ऑफिसर लेडीज होती हैं वो दूसरे को तो कुछ समझती ही नहीं है, जो छोटे ग्रेड पे है उसको कुछ समझती नहीं है, उसको हकीर समझती हैं। तो ये बहुत टेंशन होती है कि लेडीज का एहतराम नहीं करती, ये तो बहुत ज्यादा है। हाँ, और ये बड़ा अहम टॉपिक है जिसको हमें समझने की ज़रूरत है कि हम क्या कर रहे हैं। हम मर्दों को तो एक साइड पे रख दें कि उनके क्या रवैये होते हैं हमारे साथ, उसमें भी कहीं हम लोग ही शामिल होते हैं कि दूसरे से आगे निकल जाने की दौड़ में जो है ना, वो हम मर्दों को साथ शामिल कर लेते हैं। बिल्कुल। कि ये हमारे कजन्स हैं, ये हमारे रिलेटिव्स ये हमारा हैं, भाई देखो है। जरा कोशिश करो कि इसको जरा पीछे हटाओ, हाँ जी। ये हमसे आगे निकल रही है तो इसको मत निकलने दो, ये बड़ा गलत रवैया है। हाँ जी, रवैयों में चेंज लाने की जरूरत है हमें, और एक दूसरे को समझने की जरूरत है। बिल्कुल। तो इस हेलो। जरूरत को कैसे पूरा करें? आप क्या समझते हो, क्या होना क्या चाहिए? होना ये चाहिए कि हमें मिलजुल के एक दूसरे का एहसास करना चाहिए। अगर हम एहसास ही नहीं करेंगे, दूसरे की प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड नहीं करेंगे, तो हम लोग कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। अगर हम एक दूसरे के साथ मिलके चलेंगे तो मेरा ख्याल में कामयाबियां, ताली दोनों हाथ से बजती है, एक से तो नहीं बज सकती। तो हमें मिलके चलने की जरूरत है। मेरे जहन में भी कुछ बातें हैं, मैं ज़रूर चाहती हूँ कि आप सबसे शेयर करूँ कि हमें औरत होने के नाते हमें पता होना चाहिए कि हम वो हस्ती हैं जो कि बच्चे की पहली दरसगाह है। हम जो करते बिल्कुल, हैं, बिल्कुल। जैसा करते हैं, बच्चा वो बच्चे follow करता है। वही फॉलो करते हैं, वही सीखते हैं। तो हमें इस बात का ख्याल होना चाहिए। फिर दूसरा ख्याल हमें ये होना चाहिए कि अगर आज हम किसी को नीचा दिखाने के लिए अपनी जेलसी में कुछ ऐसा कर रहे हैं, तो कल कोई और भी हमारे साथ करेगा। जैसा कि कलाम कहता है कि जैसा कि तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे साथ करें, तुम भी उनके साथ वैसा ही करो। तो ये जिम्मेदारी पहले हमारी होनी हमारे पे चाहिए आता है। कि हम एक दूसरे को ना डिग्रेड करें। हम एक दूसरे को, औरतें बहुत डिग्रेड करती हैं। बिल्कुल बिल्कुल, यू आर राइट, हाँ जी। आप सही कह रही हैं। और फिर हमें उसके एक दूसरे का एहसास करना। फिर दूसरी बात जी, ये है जी। कि गरूर से खुदावंद को सख्त नफरत है। अगर आपको कोई अच्छी पोस्ट मिली है तो हरगिज भी इसका मतलब ये नहीं है कि आपसे जो कमतर पोस्ट पे है औरत, आप उसको डिग्रेड करके तो आप शुरू उसको कर दें, जलील जी। करें या आप उसके ना ऐसे जुमले बोलें। तो ये बहुत ज़रूरत है। अगर हम कलाम को पढ़ते हैं या कलाम को मानते हैं या हम समझते हैं, मैं हर मज़हब की बात कर रही हूँ, कोई भी मज़हब बुरा नहीं सिखाता, हर मज़हब जो है वो अच्छा सिखाता है। तो इन रवैयों को बेहतर करके हम अपने पूरे माशरे को बेहतर बना सकते हैं। क्या ख्याल है आपका? बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही, यू आर राइट। तो हेलो। हम इसमें ना छोटी छोटी बातों पे वो शुरुआत कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे कुछ ख़वातीन की आदत होती है कि वो किसी को अच्छा कुछ कपड़ा पहना हुआ देखे, कोई सूट वूट अच्छा पहना हुआ हो तो फ़ौरन तारीफ़ करेंगी, बहुत अच्छा लग रहा है, ये ज्वेलरी भी बहुत अच्छी लग रही है। और कभी कभी हम लोग क्योंकि अपना आजकल मुंह brand बंद कर लेते हैं, हम बोलना ही नहीं चाहते।
है ना? सही कह रही हैं सब हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। जैसे कि हम आजकल ब्रांड्स ने जगह ले ली, ब्रांड्स के चक्कर में हर कोई एक दूसरे से अच्छी ब्रांड को यूज करना चाहता है। हाँ जी, बिल्कुल ऐसा ही है। तो ये सारी छोटी छोटी बातें हैं जो हमारी ज़िंदगी में होती है, इन सब पर कंट्रोल अगर करें और वाकई कलाम को हम अपने सिर्फ पढ़ने की हद तक नहीं अपनी ज़िंदगियों में शामिल करें तो फिर वो नज़र आएगा, फिर हमारे माशरे में तब्दीली आएगी। थैंक यू, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। तो फिर किसी प्रोग्राम में ज़रूर आपके साथ दोबारा बात होगी। ओके, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय। गॉड ब्लेस यू। ओके बाय। जी हिना, आप क्या कहते हो? मेरे जहन में ये बातें जो चल रही थी अभी कुछ देर पहले जो हमने बात की शीरीन से, शीरीन, हाँ। उन्होंने बहुत एक फ़र्क पर्सपेक्टिव से ख़वातीन का एक रोल के बारे में बात की, जिसमें उनका ज़्यादा फोकस सब्र पे था। डोरी ने जिस हवाले से बात की वो भी ज़िंदगी की एक हकीकत है कि ऐसा भी होता है। मगर मेरे जहन में ये आ रहा था कि बाइबल में हमें भी ये भी दोनों सूरतें हमें नज़र आती हैं। अगर हम मुकद्दसा मरियम का और इशबात का रिश्ता देखें तो हमें एक बहनों की एक ऐसी बॉन्डिंग नज़र आती है कि वो भी एक्सपेक्ट कर रही थी, वो भी एक्सपेक्ट कर रही थी, फिर भी वो उसकी खिदमत करने के लिए इतनी दूर से सफ़र करके उसके पास चली आई और उसने अपनी बहन की मतलब साथ वो सारा वक्त गुजारा। फिर इसी तरह से रूथ और नयोमी का भी आपने जिक्र किया कि उनका अपनी सास के साथ कितना अच्छा रवैया था और पॉजिटिव था। दबूरा और रुबैका की हमने बात पिछले प्रोग्राम में हम कर चुके हैं कि वो एक नर्स की हैसियत से मिलके काम करती थी। और मार्था और मरियम के बारे में भी हम जानते हैं कि वो दोनों बहनें थी और वो खुदा यीशु मसीह के फेवरेट फैमिली फ्रेंड्स में मतलब उनका शुमार होता था। तो ये पॉजिटिव एग्जांपल्स हमारे पास बाइबल में से भी हैं सपोर्ट की, और हमें ये भी पता चलता है कि हम इन्हें रोल मॉडल के तौर पे पेश करते हैं। बिल्कुल कि ये देखो। ऑन दी अदर साइड अगर हम चले जाएं नेगेटिविटी की तरफ, सारा और उसकी जो थी दूसरी वाली औरत हाजरा, सारा और हाजरा। अब सारा ने अगर हाजरा की तरफ कदम बढ़ाया था तो एक पॉजिटिव थॉट लेके बढ़ाया था कि भी हमारी जिंदगी में खुशी आएगी, इसके वसीले से शायद खुदा मुझे नहीं दे रहा, शायद खुदा इसे मेरा वसीला बनाना चाहता है। तो एक बहुत ही पॉजिटिव सोच के साथ उसने कदम बढ़ाया और उसने अपने हस्बैंड को इजाजत दी कि वो इतना बड़ा मतलब स्टेप उठा ले। मगर ऑन दी अदर साइड जब हम हाजरा का रवैया देखते हैं तो वो एक डोमिनेट करने की उस पे आ गई। हाँ बिल्कुल, उसने उसको डोमिनेट करना शुरू कर दिया, और सिर्फ डोमिनेट ही नहीं बल्कि उसने उसे डिग्रेड भी करना शुरू कर दिया इस वाले से कि खुदा ने मुझे औलाद से नवाजा मगर तुझे उसने बे औलाद रखा। और यही सेम स्टोरी जो है वो हन्ना के केस में भी आती है कि जो हन्ना की सौतन थी वो भी उसे, मगर वहां पर ये वो बात है कि पॉजिटिव वो अगर बड़ी या जो पहली बीवी है उनकी जिंदगी में अगर वो दिल बड़ा कर रही है तो ये जो जिन्हें खुदा ने नवाज दिया ऐसी औरतें क्यों दिल बड़ा नहीं कर पा रही। सही बात है। और अब हमारे मसीही घरों में तो मोस्टली ऐसा है ही नहीं कि दूसरी बीवी का कोई नहीं, वो तो मैं वैसे एक बात कर रही है ना, हूँ तो इसकी जो है वो कश्मकश हमें कम सहनी पड़ती है, और ये शुक्र करना चाहिए। और लेकिन जो दूसरे हमारे दूसरे रिश्ते होते हैं जो खूनी रिश्ते हैं या जो हमें मिले हैं, हम उसमें भी इसी तरह के रवैये रखते हैं, अपनी बेटी से जरा ज्यादा प्यार और अपनी भतीजी को जरा वो करना। वो बात आपकी भी अपनी जगह ठीक, मगर अगर हमारे फैमिलीज में भी आप देखें ना तो अगर फैमिली में दो नंद है, भाभी है, जिठानी है और वो है, किसी एक जिसके पास औलाद नहीं है, खुदा ना करे ऐसा कभी किसी के भी साथ हो, उसकी जिंदगी आज के दौर में भी इस सदी में भी जाके भी ना जिंदगी उसकी मुश्किल कर देते हैं, उसको डिग्रेड कर देती हैं। और औरतें ज्यादा कर रही होती हैं, यही बात है ना कि औरतें क्यों ज्यादा कर रही होती है जबकि औरतों को ही तो सपोर्ट करना चाहिए। यही बात है। और फिर उस ऑन दी अदर साइड अब अगर हम प्रोग्रेस की बात करते हैं तो औरतें ही सबसे ज्यादा गॉसिप कर रही होती हैं कि अगर किसी की बच्ची जॉब कर रही है, आगे जा रही है, उसकी अच्छी पोस्ट बन रही है, उसकी किसी और शहर में उसकी ट्रांसफर हो गई है, किसी और वो कंट्री में चली गई है, अब इलाके के हिसाब से माहौल के हिसाब से उसने मॉडर्न भी होना है, उसने दुनिया के साथ चलना है ना। तो आजकल फेसबुक का रिवाज है तो तस्वीरें
یہ تو بدل ہی گئی ہے, اس کو یہ تو کسی اور یواؤں میں چلی گئی ہے, یہ تو مطلب whatever. مجھے آپ نے بولا نا کہ عورتیں ہی زیادہ گوسپ کر رہی ہوتی ہیں, تو مجھے ایک لطیفہ یاد آ گیا. میں نے کہیں پڑھا کہ عورت جو ہوتی ہے وہ کیسی ہوتی ہے کہ پہلے صبح جب دن کا ٹائم ہوتا ہے تو وہ اپنی پڑوسن سے اپنے شوہر کی برائیاں کرتی ہے, اور جب رات ہوتی ہے اس کا شوہر, شام ہوتی ہے شوہر آتا ہے گھر, تو پھر اپنے شوہر کے ساتھ اپنے پڑوسن کی برائیاں کرتی ہے. تو یہ جو خیالات ہیں نا ہمارے بارے میں, ان کو ہم نے غلط ثابت کرنا ہے کہ ایسا اور یہ ممکن ہے, ممکن ہے, اگر ایسا نہیں ہے ہم کہ ناممکن ہے. اگر ہم اپنوں کے لیے کر سکتے ہیں جنہیں ہم دل سے اپنا مانتے ہیں, ہم ان کے لیے ہر قربانی دے لیتے ہیں. صحیح بات. ایک بہت بڑے عالم ہیں, ان کا مجھے نام نہیں یاد آ رہا, لیکن وہ بہت اچھے موٹیویشنل لیکچرز دیتے ہیں میڈیا پہ. تو انہوں نے ایک دفعہ یہ بات کی اس حوالے سے کہ اگر مائیں چاہیں تو معاشرہ سنور سکتا ہے. بہت اہم بات ہے یہ, تو پہلی درسگاہ ہی وہ ہے نا. کیونکہ اگر ماں کہتی ہے نا کہ تو نے فلانے سے بولنا ہے تو فلانے سے نہیں بولنا, تو وہ چیز ہمیشہ کے لیے اس بچے کے اندر فکس ہو گئی ہے. صحیح بات ہے. ان دا لانگ رن اگر آپ کی صلح بھی ہو جاتی ہے نا, تو کہیں نہ کہیں اس کے دماغ میں یہ بات بیٹھ چکی ہے کہ اس سے میں نے فاصلہ رکھنا ہے, اور وہ فاصلے کا مطلب کیا ہے کہ وہ نیگیٹیوٹی کو آپ جگہ دے رہے ہیں. صحیح بات ہے. اور ناظرین, میں آپ کی توجہ اس طرف دلوانا چاہتی ہوں کہ ہم 2 خواتین اس پروگرام کو کرتی ہیں, اور آپ نے ہمارے رویوں کو دیکھا ہوگا, آپ نے ہماری دوستی کو دیکھا ہوگا کہ ہم کتنا مل جل کر اس کو کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور یہ بھی آپ لوگوں کے لیے ایک مثال ہے. آپ دیکھیں ہماری کوئی ایسی بات نہیں ہوتی ہے نا, کتنے اچھے سے ہم لوگ کپڑے بھی میچ کر کے پہنتے ہیں نا, تاکہ اچھا لگے. تو اسی طرح سے دوستی بنا کے رکھیں, کوشش کریں کہ ہم کم از کم, اگر دوسرے سائڈ سے انہیں سپورٹ نہیں مل رہی تو ہم خواتین جو ہے ایک دوسرے کو سپورٹ کریں, جہاں مدد کی ضرورت ہے ان کی مدد کریں اور تعریف کریں. یہ چھوٹی سی بات ہے, یہاں سے سٹارٹ لیں, ایک دوسرے کی تعریف کریں. ہم اپنا منہ بند کر لیتے ہیں, دل سے بڑا اچھا لگ رہا ہوگا, پھر اس کھوج میں لگ جاتے ہیں, اچھا یہ سوٹ اس نے پہنا ہے, کہاں سے لیا ہوگا, میں اس سے بہتر لے کر آؤں گی, میں اس سے مہنگا. ہم اپنا خرچہ بھی زیادہ کرتے ہیں اور دل میں کدورت اور نفرت کو جگہ دیتے ہیں جو کہ خداوند کو پسند نہیں ہے, اور جو پھر مسائل کا باعث بنتی ہے. تو کوشش کریں کہ ہم مسائل کو نہ بننے دیں, بلکہ مسائل کو ختم کریں. صلح پسند ہو, خداوند کو صلح پسند ہے, صلح قائم کرنے کی کوشش کریں, صلح کروائیں. اگر کہیں 2 عورتوں میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ کچھ رویے بدل رہے ہیں, تو ان کی صلح کروانے کی کوشش کریں, بجائے اس کے کہ اس کے ساتھ مل کر ہاں مجھے بھی اس نے یہ کہا تھا, میرے ساتھ بھی یہ ہوا تھا, یہ ہے, یہ ایسی ہے. یہ نہ کریں. یہ ہم اپنے کردار کو خراب کرتے ہیں نا. پھر ہمارے لیے لوگ باتیں کرتے ہیں کہ عورتیں ایسے کرتی ہیں, عورتیں ایسے کرتی ہیں. عورتیں بہت اچھی ہوتی ہیں, بہت معصوم ہوتی ہیں, بہت پیار بھری شخصیت ہوتی ہیں. خداوند نے انہیں خاص طور پر تخلیق کیا ہے, جیسے کہ ہم نے اپنے ایپیسوڈز میں ذکر کیا تھا کہ مرد کے دل کی حفاظت کریں. خداوند ایسے تو کسی مرد کے دل کی حفاظت کرنے کو نہیں کہہ رہا, وہ کتنی ذمہ داری بڑی ہم پہ اس لیے ڈال رہا ہے کہ اس کو پورا یقین ہے کہ ہم لوگ ایسا کر سکتے ہیں. تو وہ سارے ہمارے رویے جو ہیں وہی ہمارے کردار کو خراب کرتے ہیں. بالکل. تو میرا خیال ہے پروگرام کا وقت بھی ختم ہوا ہے. اگر آپ کچھ کہنا چاہیں تو. میں بس یہ کہنا چاہتی ہوں کیونکہ خدا نے جو عورت, ہم نے اسی پروگرام میں یہ بات کی تھی کہ پسلی جو ہوتی ہے نا, پسلی وہ ٹوٹ بھی جاتی ہے, تو اس میں خدا نے ایسی وہ ایبلٹی رکھی ہے کہ وہ خود بخود ہیل ہوتی ہے. تو خدا نے عورت میں بھی سیلف ہیلنگ کی پاور دی ہے, تو اس ہیلنگ پاور کو ایک دوسرے کے لیے استعمال کریں. ہاں, وہی والی بات, ایک دوسرے کو سپورٹ کرنے کے لیے استعمال کریں, کیونکہ یہ پسلی ہے, جیسے یہ دل کی حفاظت کرتی ہے. اگر یہ غلطی سے ایسے ٹوٹے کہ یہ دل کے اندر کھب جائے, تو اس کا بھی سب سے بڑا نقصان, زندگی ختم ہو جائے گی. تو یہ ایک میں نے صرف ایک حوالہ دیا ہے کہ خود سوچیں کہ عورت کی کتنی امپورٹنس ہے معاشرے میں. صحیح بات ہے کہ وہی بچانے والی ہے, وہی حفاظت کرنے والی ہے, لیکن اگر وہ نیگیٹو ہو جائے تو وہ زندگی کو بچانے والی طاقت جو ہے وہ دی ادر وے راؤنڈ بھی جا سکتی ہے. بہت سارے فلاسفرز جو ہیں وہ اس پر بات کر چکے ہیں کہ سوسائٹی جو ہے وہ عورت کے مرہون منت ہے, عورت اسے بناتی ہے. کیوں؟
फिर वही बात आ जाती है, क्योंकि औरत तरबियत कर रही होती है अपने बच्चों की, वो एक ख़ानदान के कितने पर्सन्स होते हैं उनकी तरबियत करती है, वो आगे चलते हैं, वो माशरे का हिस्सा बनते हैं, और जी। इसी तरह बहुत सारे ख़ानदान मिलकर ऐसा होता है। अगर माएँ खुद ठीक हैं या वो खुद पढ़ी लिखी है, इस हवाले से मैं वैसे पढ़ी लिखी की बात नहीं कर रही, अगर आप वैसे पढ़े लिखे ना भी हों लेकिन आप एक्चुअली पढ़े लिखे हों, खुदा उनके कलाम से आप वाकिफ़ हों, तो आपका रवैया कभी भी दूसरी औरत के साथ, दूसरे लोगों के साथ बदतमीज़ नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। आप बुरे तरीके से बात नहीं कर सके क्योंकि आपने सीखा नहीं है ना सीखा ये। नहीं। तो अगर आप अपने बच्चों को यही सीख देंगे तो वही आगे जाएगा और वही हमारे माशरे का हिस्सा भी बनेगा। तो मिलते हैं फिर किसी प्रोग्राम में किसी और टॉपिक के साथ। अपना बहुत ख्याल रखें। खुदावंद आपके साथ हो। Do not forget to like the video, subscribe PTL TV, and press the bell icon to receive notifications.